आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 6,770 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,02,876 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 6,770 कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल एक ही दिन में आंध्रा में कोरोना से 58 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,492 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। उधर आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। विजयवाड़ा के दासरी भवन में मुनक्किदा इजलास में हुक्मरान जमात वाईसीपी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। इजलास में शरीक आम आदमी पार्टी के अलावा सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने नई पॉलिसी की मुखालिफत की। अपोजिशन लीडरों ने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। Bad practice. Every year, the new government comes into the power and get back to only to increase the funds for the treasury, and they don't even take the procedures how to increase their funding in their treasure. Rejected, and there is no funding for Andhra Pradesh treasury. And they are adopting different ways to grow their funds in the Andhra Pradesh by increasing the taxation on the land values and liquor prices, and they are just exploiting the present situation, getting the benefit to only to fulfill the schemes which they are talking as a Navaratna schemes. At the time of election, the YSR Congress Party, they propagated that there will not be any tax exoneration, but now they are hiking the taxes. Moreover, I am asking the state government, if there are local bodies, the elections, there are governing bodies are there, the mayors are there, deputy mayors are there, all corporators are there, they will decide on their own. Why are you putting all these things? You are issuing the GOs, and then you are asking the municipality to implement it. Without asking the mayor, without asking the chairman, the commissioners are going to implement these things. Moreover, the Botsa Satyanarayana, the Minister of Urban Area, he is telling that there is only 15%, whether it is 15% or 20% or 10%. Let them decide on their own, because that is a local government is there, local body is there, when mayor is there, corporators are there, they will decide on according to their suitability. So I request the state government to withdraw all these GOs. The area of municipal corporations is a very serious burden on the people of the urban areas. Already many people lost their employment. So many people, because of lockdown, they could not get anything to make both ends meet. Under these conditions, the government of Andhra Pradesh enhancing the property tax and on the garbage is more dictatorial and it is burdensome. We, the left parties, are opposing it. Today, the roundtable meeting has resolved demanding the government of Andhra Pradesh to withdraw the enhanced rates. Congress is absolutely opposing this kind of taxes, irregular taxes, which was destroyed to the common man life. Every citizen was destroying their life. अभी जो म्युनिसिपल टैक्सेस जो रखा गया, घास पे टैक्स और प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर टैक्स बनाना, आज तक हिंदुस्तान में, भारत में कौन सा स्टेट में भी इस तरह टैक्सेस नहीं है। पता नहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को लोन देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए आज जगनमोहन रेड्डी जी 196, 197, 198 3 जीवो लेकर आंध्र प्रदेश अवाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं।
मेहरबानी के लिए अगर अवामी का खुशी चाहते हैं, अवामी का जीना चाहते हैं तो तुरंत इस जियो को। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है, वादों को निभाने में नाकाम हो गई है। सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन और मेडिसिन न होने से अमवात में इजाफा हुआ है। सेकेंड वेव जबकि हुकूमतों को मालूम था कि आने वाला है, हुकूमतों की लापरवाही से काफ़ी जाने गए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ये लोग जानते थे, WHO ने इनको आगाज़ किया था, मेडिकल काउंसिल इंडिया का वो भी आगाज़ करके थे कि सेकेंड वेव आने वाला है। उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना वैक्सीन प्रोडक्शन यहाँ पर होता था वो तमाम जो है अपनी PR बढ़ाने के लिए, अपना खुद का नाम रोशन करने के लिए बाहरी मुल्कों में भेज दी। जब जाने शुरू हो गई तो कोई किस्म की तैयारी ही नहीं रखे, ना पहले से ऑक्सीजन तैयार था, ना पहले से एम्बुलेंसेस तैयार थे। कहाँ गए वो एम्बुलेंसेस जो चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल बहुत बड़ी विजयवाड़ा में रैली करके रिलीज़ किया? आज तो एक गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही। लोगों को अपने जेब से लाखों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है एम्बुलेंसेस के लिए। कहाँ गया वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग जिसका इंतकाल हो गया है कोरोना की वजह से, उन्हें दफनाने की जिम्मेदारी लेने का? हम शुक्रगुजार है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऑर्गेनाइजेशंस आगे आकर उस जिम्मेदारी को पूरा किया है, लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खिदमात अगर होना है तो आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपडेट होना चाहिए। उसकी बजाय आपने क्या किया है? टेम्पररी शेल्टर्स डाले, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को दिया है। पहली बात तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, कोविड पेशेंट जब आता है उसका जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, उसका जब 80% के नीचे आ जाता है तो उसको 15 लीटर का ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 5 से 6 लीटर से ज़्यादा नहीं बनाते। तो ये तो जानलेवा इक्विपमेंट है, ये जानलेवा इक्विपमेंट नहीं है, ये तो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं है। हमारा डिमांड सबसे पहले सारे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करा जाए, और हमारा डिमांड जगन मोहन रेड्डी साहब से है कि आंध्र प्रदेश की हर आवाम को 5 करोड़ आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करा जाए। चाहे वो आप हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़कर लाते हैं या वैक्सीन ख़रीद कर लाते हैं, वो हमको उससे वास्ता नहीं है, लेकिन फ्री वैक्सीनेशन आवाम को ज़रूर दिया। रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम में हुकूमत कामयाब तो होती नजर आ रही। पिछले चंद रोज से कोरोना वायरस के कम केस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम में अवाम ने भी साथ दिया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल करें। हमेशा पिछले वेव में भी अगर आप देखेंगे तो वेव जो है पहले ऊपर ज़्यादा केसेस जाती है, उसके बाद में आहिस्ता से जो है नीचे आती है। उसी तरीके से अभी हम लोग करनूल ज़िले में बहुत कम केसेस हम लोग देख रहे हैं। इसके पीछे जो है गवर्नमेंट की, ख़ासतौर पे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की एंड फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है पुलिस डिपार्टमेंट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे सारे लोग जो है अपनी जान पे खेल के जो काम कर रहे हैं, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से पब्लिक का भी इसमें बहुत बड़ा साथ है। अगर पब्लिक अगर साथ नहीं देती तो ये वेव को इतना जल्दी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर वेव कंट्रोल हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोरोना चले गया है। कोरोना अभी भी बाकी है। आपको मास्क पहनना है, आपके 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन लेना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये जब तक और एक 6 महीने साल तक जो है ये सब चीज़ों का एहतियात बरतना है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है मास्क फिर पहनना बंद कर दे रहे हैं या कम कर दे रहे हैं। नहीं, अब नहीं है, कोरोना नहीं है बोलकर ऐसा मत करिए। आप लोग एहतियात करिए। आप जो है शायद पैसिव कोरोना सर्वाइवर होंगे, जिसकी वजह से जो है आप कैरियर बन जाते हैं। कैरियर बन गए तो जो लोग उम्र दराज लोग रहते हैं उन लोगों को जो है आप कैरी कर सकते हैं। फिर से साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 3rd वेव भी रह सकती शायद बोलकर, उसके वजह से भी हम लोगों को गवर्नमेंट पूरी की पूरी तैयारी कर रही कि उसको किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं बोलकर। इसीलिए मैं अभी भी आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क का पहनने का एहतराम करिए। हमारे पास खासतौर पे करनूल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का जो ऑक्सीजन बैंक बनाए हम लोग, जगनन ऑक्सीजन बैंक बोलकर, मेरे तरफ से हमारे
स्पॉन्सर्स जो है दिए हैं हम लोगों को। अभी भी हमारे पास 250 ऑक्सीजन बैंक में लाए हैं, 100 ऐड करे हैं अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो जिसको भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, जो घर में जो है जिसका इलाज हो रहा है, जो है इलाज के बाद में घर में जिसको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है कुछ दिनों के वास्ते, वो लोग आकर यहाँ पर हमारे रॉयल फंक्शन हॉल के पास जो ऑफिस है MLA ऑफिस में, आप अपना नाम लिखाकर अपना आधार कार्ड देके आप लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोई भी आदमी आकर लेके। आंध्र तेलंगाना सरहद पर ट्रैफिक जाम है। ई पास न रखने वाली गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि एक रियासत से दूसरी रियासत में दाखिले के लिए ई पास जरूरी है। तेलंगाना पुलिस ने कल रात से अब तक ई पास रखने वाली 700 गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिले की इजाजत दी है, जबकि 1500 से ज्यादा गाड़ियों को दाखिला नहीं दिया गया क्योंकि इनके पास ई पास नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने आंध्राई अवाम से ताउन की अपील की है। तो उधर जिला करनूल के सरहदी इलाके पंचालिंगाल चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस ने हैदराबाद से करनूल जा रहे एक शख्स की तलाशी ली। इस दौरान एक मुसाफिर के पास 1 किलो 818 ग्राम सोने के जेवरात पाए गए, जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस ने सोने के जेवरात को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की गरज से इस शख्स को मकामी पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए सोने की मार्केट कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपये से जायद है।